Hello students, we are reading lesson 2 Diversity and Discrimination of Social and Political Life part 1. Okay, so let's start from page number 19. Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. But they were not allowed to enter the homes of the upper castes or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to children of other caste in school. This upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901, when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound of Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. We were well dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the community which were treated as untouchables in the Bombay presidency. He was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to feeling of extreme sadness. तो यहाँ दलितों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जिन्हें लोअर कास्ट भी कहा जाता है। लो कास्ट के लोगों को दलित कहा जाता है और उन्हें अनटचेबल्स या टूटा हुआ कहा जाता है, ठीक है, जिनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट उन्हें किस ग्रुप में शामिल करती है? शेड्यूल्ड कास्ट में, मींस एससी। जो एससी होते हैं उनको दलितों में वो शामिल करती है, ठीक है। अनटचेबल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग होते हैं जो गार्बेज, कचरा उठाते हैं, है ना। कुछ क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को हटाते हैं। गांव में अगर खत्म हो जाते हैं कुछ एनिमल्स जो हैं तो उनको हटाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को अपर कास्ट वाले अपने होम में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। और तो और उन्हें विलेज के वेल से, मतलब गांव के जो कुएं वगैरह होते हैं वहां से पानी लेना भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। उनको मंदिर जाना अलाउ नहीं होता था। पहले की बात बताई जा रही है, आजकल तो सब जाते हैं, ठीक है। उनको मंदिर जाना अलाउ नहीं होता था, है ना। उनके बच्चे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अनटचेबल्स जो दलित लोग होते थे उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता था,
ठीक है, वो बाकी लोगों की तरह जो राइट्स होते हैं, है ना, उनको वो एंजॉय नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा और सभी जानते हैं, जिनने हमारा क्या लिखा है, संविधान लिखा है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी एक क्या थे, दलित वर्ग से ही थे, जो कि हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे यहाँ के ग्रेटेस्ट लीडर है ना, नेता, एक महान नेता। ठीक है, तो उनने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया, भेदभाव वाला जो था, डिस्क्रिमिनेशन का या कास्ट बेस्ड, है ना, उनने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, ये बात थी 1901 की, 1901 की बात थी, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे। ठीक है, तो वो अपने ब्रदर के साथ और अपने कजन्स के साथ अपने पिताजी से मिलने कोरेगांव गए, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोरेगांव जा रहे थे, गए वो, है ना, बड़े लंबे इंतजार के बाद। तो उस समय जो उनके पिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वो किसमें थे, सूबेदार थे, ब्रिटिशर्स के यहाँ सूबेदार थे, सेना के सूबेदार। ठीक है, तो इस जब सूबेदार थे तो सैलरी अच्छी होती थी, तो बच्चे भी अच्छी तरीके से ही रहते थे उनके। ठीक है, कि जैसे एक एजुकेटेड फैमिली, उनके पिता भी पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो उनसे मिलने ये लोग गए थे, है ना। तो लंबे इंतजार के बाद स्टेशन मास्टर इंक्वायरी के लिए वहां स्टेशन पर आए, तो उनने उन बच्चों से, स्टेशन मास्टर ने उन सभी बच्चों से क्या मांगा, टिकट मांगा। तो उन लोगों ने अपना टिकट उनको दिखाया। ठीक है, तो वे स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि हम यहाँ अपने फादर या उनके सर्वेंट का वेट कर रहे थे। ठीक है, कि वो हमें यहाँ से लेकर जाएंगे और वहां कोरेगांव हमें दिखाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया और हम नहीं जानते कि हम कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो उस समय जो थे हम लोग, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताई जाने वाली ही कहानी है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि हम लोग उस समय वेल ड्रेस्ड, मतलब बहुत अच्छे से तैयार थे, बहुत अच्छे से रहने वाले बच्चे थे। ठीक है, हमारे ड्रेस, मतलब हमारे ड्रेस को और हमारे बात करने के तरीके से किसी को ये पता नहीं चल सकता था कि हम अनटचेबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी लगभग श्योर था कि हम कोई ब्राह्मण चिल्ड्रन है ना, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब ऐसा कि हम अनटचेबल्स हैं। ठीक है, वो हमें छू सकते हैं, उनको ऐसा लगा। ठीक है, तो फिर भी स्टेशन मास्टर से उनने पूछ लिया कि तुम लोग हो कौन, किस जाति के हो। तो इन लोगों ने बिना हिचकिचाए और बता दिया कि हम महार हैं। ठीक है, महार जाति के हैं, है ना। महार ऐसी कम्युनिटी है जो अनटचेबल्स है। ठीक है, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो था आश्चर्यचकित हो गया स्टेशन मास्टर। ठीक है, उसका फेस देखने लायक था उस समय। तो हम लोगों ने पाया कि वो जो था बहुत ओवर पावर्ड हो गया, उसकी बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी उसके फेस पर। ठीक है, तो जैसे ही उसने मेरा रिप्लाई सुना तो वो दूर चला गया और दूर से वहां फिर वो अपने रूम चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। हमने 15 to 20 मिनट्स वहां पर क्या किया, वेट किया। ठीक है, यहां तक कि सन भी, सूरज भी डूबने ही वाला था, लेकिन ना ही पिताजी आए, ना ही उनका कोई सर्वेंट आया। और उसके बाद स्टेशन मास्टर जो थे वो भी हमें छोड़कर चले गए। तो जो मतलब खुशी थी, जो उत्साह था जर्नी, मतलब सफर पर जाने का, वो हमारा सब वहां धरा का धरा रह गया। ठीक है, और हम लोग उदासी के साथ वापस हुए। ठीक है, फिर उसके बाद वापस नहीं हुए उदास, मतलब वहां पर हम लोग उदास हो गए और लगभग हाफ एन आवर, ठीक है, आधा एक घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आते हैं। ठीक है, तो वापस आकर स्टेशन मास्टर कहते हैं इस रास्ते के अलावा और आप किस रास्ते से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अगर हमें क्या मिल जाए, बुलोक कार्ट मिल जाए, ठीक है, तो हम कोरेगांव, बुलोक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, तो हम उसमें जा सकते हैं। अगर ये ज्यादा दूर नहीं है तो हम स्ट्रेट वे से सीधे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और वहां पर तो बहुत सारी बुलोक कार्ट्स रहती हैं, लेकिन
स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप लोग तो क्या है, महार है, और कोई भी बुलक कार्ट वाला अनटचेबल व्यक्ति को, है ना, वो अपने साथ, दलित व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अनटचेबल क्लासेस से हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोग कहते हैं कि हम डबल पे कर देंगे, हम ज्यादा पैसे दे देंगे, किराया जो है डबल दे देंगे। ठीक है, तो पैसा तो कोई भी काम कर सकती है ना। तो स्टेशन मास्टर जो थे, है ना, वो शांत खड़े रह गए। अब उनको समझ में आ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। ठीक है, तो वो स्टोरी तो यहीं पर हो गई खत्म। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो। ओके।